guys, I welcome you all to the day 145 of our series, and in today's session we are going to learn an interesting topic on verbs, gerund verbs. Let's get started. And before we move further, here is your yesterday's task. You were supposed to write the correct word at the end of the sentence. Let's get started. The company deals in extra modern contemporary furniture in ultra. Next is the weather has meant that the building is in a poor state of destruction. In a poor state of preservation, not destruction. Preservation. Next is they discovered the ruins of a dead ship at the end of the field. Not ruins. We use the word remains. In case of human or an animal, we only use this word ruins in case of any building. In case of any non-living structure. Next is she keeps the horses in the stables. We have to eliminate this letter E. Stables at night. Next is the war left the whole area on ruins with countless run-down buildings. Not on ruins, we use in ruins. Here the error is from preposition in ruins. Next is Mumbai, formerly known as Bombay, has a population of 15 million. It is not formerly, it is formerly. Or you can also say previously. Previously, formerly. Coming to the next exercise, here you were supposed to complete the dialogues. The building used to be a prison, didn't it? No, it was dash a hospital. No, it was. Again, formerly. Or you can also write here previously. Previously a hospital. Next is, are you going to do the place? To do the place up. Yes, we plan to dash it. Yes, we plan to renovate it. Next is, isn't it is in a bad state, isn't it? Yes, it is very dilapidated. Dilapidated. Or you can also use this phrasal verb run down. Run down. Or you can also use another synonym of dilapidated, and that is ramshackle. Ramshackle. Next is, it fell into dash years ago. It fell into decay or disrepair. Wait, let me correct my spelling. Disrepair. Next is years ago. Yes, it was dash by the owner. So yes, it was abandoned. Okay, I'm clearing the screen up. Yes, it was abandoned. ED. Or you can also write, yes, it was deserted by the owner. Next is, we can restore it to its original condition. Yes, we should preserve. We should preserve old buildings. Next is, it dates from the dash ages, from the Middle Ages. Next is, that's right, it is medieval. M-E-D-I-E-V-A-L, medieval. Next is, why is he using the internet so much? He wants to dash his family history, trace his family history. Last one is, that style is very fashionable just now. Yes, it is ultra modern. Ultra modern. Now let's move forward. Infinitives. This topic we have already done earlier. Now coming to this topic, gerund. The similarities between both of these topics is that both of them are used as verbs.
This is 2 plus V1 and gerund is V1 plus ing, this structure. So a gerund is a noun made from a verb by adding ing. And even infinitive is noun in its form, 2 plus V1. We can also use this structure as a noun. For example, smoking is a bad habit. Here, smoking is working as our subject. And we all know that subject can either be noun or a pronoun. And in this part also, to eat healthy is important. Here, to eat is acting as a subject. So in both of the statements, smoking as well as to eat, both of these phrases are nouns. So gerunds and infinitives, both the structures can be used as verbs as well as nouns. So this is a bit of grammatical portion, but you can use gerund as a subject or as an object. And we can also make these structures into their negative forms by adding not. For example, not smoking and not to eat. तो सिमिलरिटी दोनों में सिर्फ ये है कि दोनों को वर्ब या फिर नाउन दोनों की जगह यूज किया जा सकता है. डिसिमिलरिटी ये है कि इन्फिनेटिव्स यानी टू V1 एंड gerund मीन्स ing स्ट्रक्चर. तो अब देखिए, there are some verbs that are followed by ing structure. For example, if we are using stop as a verb in our statement, in our sentence, in that case, we have to use ing form of verb just after this verb, means adjacently to this verb. For example, stopped here is our main verb, stopped, and we are using talking, यानी कि next verb जो हम तुरंत इसके बाद use कर रहे हैं, adjacent verb use कर रहे हैं, वो ing structure में है. You cannot say it like this, suddenly everybody stopped to talk. तो यहाँ पे अगर आप to talk ये यूज करते हो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 plus V1 यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते. यहाँ पे we have to use ing structure of the verb. Stopped talking, there was a silence. Next है जैसे finish. तो यहाँ देखिए, I'll do the shopping when I have finished cleaning the flat. यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते when I have finished to clean the flat, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ing स्ट्रक्चर को ही हम यूज करेंगे. देखिए वर्ब के केस में देखिए सिंपल सा आपको लॉजिक समझाते हैं. दो वर्ब्स को अगर हम एक साथ में लिखते हैं, दो मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो हम मेन वर्ब इजीली लिख सकते हैं, कोई भी ये स्ट्रक्चर करेक्ट है. लेकिन दो मेन वर्ब को अगर हम एडजेसेंट पोजीशन पे प्लेस करते हैं तो वहां पे दोनों में से कोई ना कोई एक वर्ब जो है हमें जेरेंट या इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करनी पड़ेगी. हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं रख सकते एक के बाद दूसरी. तो इस वजह से अब क्वेश्चन ये आता है कि जेरेंट में उसको कन्वर्ट किया जाए या इन्फिनेटिव में उसको कन्वर्ट किया जाए. तो अब हम कुछ वर्ड्स ऐसे देखेंगे आज के सेशन में कि उनके एडजेसेंट पोजीशन पे जेरेंट को ही प्लेस किया जा सकता है. वहां पे अगर हमने इन्फिनेटिव को प्लेस कर दिया तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा. जैसे यहाँ देखिए फिनिश क्लीन, आप ये नहीं कह सकते दैट फिनिश क्लीन. दोनों को आप सिंपल मेन वर्ब है, दोनों को V1 में आप नहीं रख सकते. फिनिश क्लीन या फिनिश्ड क्लीन्ड ये आप नहीं कर सकते. दोनों को सिंपल पास्ट में नहीं रख सकते. दोनों में से एक वर्ब को हमें या तो इन्फिनेटिव में या जेरेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अब देखिए नेक्स्ट है He tried to avoid answering my question. यहाँ पे देखिए avoid के बाद में भी हमें ing फॉर्म चाहिए होती है. So he tried to avoid answering my question. Next है fancy. ये हम बहुत बार कर चुके हैं. Fancy means to desire, to want something. So fancy, अब ये देखिए I don't fancy going out this evening means I don't want to go out this evening. I don't like going out that much. So fancy के बाद में हमने ing वर्ब को यहाँ पे यूज किया है. नेक्स्ट है consider. अब यहाँ पे फिर से देखिए have you ever considered going to live in another country. अब यहाँ पे अगर आप ऐसे करते have you ever considered to go and to live, वो गलत हो जाता. तो to go नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट है going. ing स्ट्रक्चर हमें यूज करना था, gerund स्ट्रक्चर यूज करना था consider के बाद में. नेक्स्ट है deny. Deny means मना कर देना किसी चीज से, टू रिफ्यूज, टू रिफ्यूट.
They said they were innocent. They denied doing anything wrong. तो अब यहाँ पे deny की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है. अगर आप ये करते that they denied do anything wrong, वो इनकरेक्ट हो जाता. They denied doing. अब जाके स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट हुआ है. तो जितनी भी वर्ब्स यहाँ पे हैं, इन सब के बाद में अगर आप कोई दूसरी वर्ब यूज करते हो तो उसे हमें ing स्ट्रक्चर में ही यूज करना पड़ेगा. दैट वर्ब हैज टू बी इन gerund स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है after enjoy, mind and suggest also you have to use ing form of verb, not to v1, not infinitive. Let's say I enjoy reading. I enjoy to read. You cannot say that. This would be incorrect. Would you mind closing the door? क्योंकि mind है यहाँ पे. Would you mind closing the door? ना कि would you mind to close the door. Would you mind ये हम polite request के केस में यूज करते हैं. polite request वहां पे हम हमेशा ही ये इस तरह से स्टार्ट करते हैं. Would you mind, ये आप जरूर नोट डाउन करना. Would you mind और उसके बाद में ing स्ट्रक्चर आएगा हमेशा ही कि आप जरा सा साइड में होंगे. Would you mind getting aside? ये हो जाएगा. आप थोड़ा सा आगे चलेंगे. Would you mind moving forward? नेक्स्ट है Chris suggested going to the cinema. ना कि Chris suggested to go to the cinema. वो इनकरेक्ट हो जाएगा. यानी कि इन तीनों के बाद में हमेशा ing को यूज किया जाएगा. नेक्स्ट में आते हैं. We also use gerund structure after give up. अब यहाँ पे कुछ phrasal verbs हैं. phrasal verbs. अब phrasal verbs वो होती हैं कि कोई एक verb given है और verb के बाद में हमें कोई ना कोई एक preposition given है. जैसे give verb हो गई, अब हमारी preposition. इसी तरह से put verb o preposition, go verb on preposition. तो ये होती है हमारी phrasal verbs. और ये कुछ स्पेसिफिक फ्रेजल वर्ब्स हैं. फॉर एग्जांपल गिव अप यानी कि स्टॉप, तो इसके बाद में भी ing को यूज करना है. पुट ऑफ यानी कि किसी चीज को पोस्टपोन करना, वहां पे भी हम ing स्ट्रक्चर यूज करेंगे पुट ऑफ के केस में. गो ऑन या कैरी ऑन, इसका मीनिंग होता है कंटिन्यू करना, किसी चीज को आगे जारी रखना. कीप या फिर कीप ऑन, अब ये भी वही है कि कंटिन्यूअसली कोई काम करते ही रहना. कीप ऑन डूइंग समथिंग. अब जैसे एग्जांपल्स में आते हैं. आई हैव गिवन अप बाइंग न्यूज़पेपर्स मीन्स आई हैव स्टॉप्ड बाइंग न्यूज़पेपर्स. आई डोंट रीड देम एनीमोर. Next is you shouldn't put off telling him what happened means you shouldn't postpone telling him what happened. कि तुम्हें और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तुम्हें उसको अभी बता देना चाहिए that what had happened at that place. Next is Catherine doesn't want to retire. She wants to go on working. Go on means she wants to continue working or to carry on working. Next is you keep interrupting when I'm talking means जैसे मैं बात कर रही हूँ तुम उसी टाइम पे इंटरप्ट क्यों कर रही हो मुझे कंटिन्यूअसली. और you keep on interrupting. जैसे कि अगर मैं ये कहूँ keep going means whatever you are doing in your life just keep doing that thing. Or keep practicing means continue to keep your practice. And here are a list of verbs कि इनके बाद में हमेशा ing को ही हम यूज करेंगे. हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी देखोगे आप यहाँ पे कि उनके बाद में हम to को भी यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम ये जितनी भी verbs हैं यहाँ पे इन सब में अगर आप ing यूज करते हो तो वो आपका करेक्ट होगा. वन बाय वन पे आते हैं. जैसे enjoy अभी हमने किया. finish, given up, suggested ये अभी हम करके आए हैं. अब जैसे ये है the doctor suggested taking a long holiday, ना कि the doctor suggested me to take, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. Andy suggested meeting for coffee, ना कि Andy suggested to meet for coffee. Are you thinking, अब think के केस में भी वही हो जाएगा. Are you thinking of buying a car, ना कि Are you thinking to buy a car, वो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है. अब कुछ एक वर्ब्स ऐसी हैं कि उनके बाद में ऑब्जेक्ट फिर हम ing स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. हमने इन्फिनेटिव के केस में भी पढ़ा था कि इन्फिनेटिव में भी कुछ वर्ब ऐसी थी इनके तुरंत बाद में
हम इन्फिनेटिव को यूज कर रहे थे प्रीवियस सेशंस में। कुछ वर्ब ऐसी थी कि इनके तुरंत बाद में हम इन्फिनेटिव को यूज करने के बजाय इसके बीच में पहले कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे और उसके बाद में इन्फिनेटिव को यूज कर रहे थे। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अब जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ वर्ब्स हैं, उनके तुरंत बाद में हम जेरेंट स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, आईएनजी स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल सजेस्टेड, टेकिंग, फिनिश्ड, मेंडिंग। मेंड मीन्स सुधारना, ठीक करना। एंजॉय, ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे हम यही स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये एडजेसेंट पोजीशन पे होने के बजाय यहाँ पे बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ वर्ब और जेरेंट के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखिए आई डिसलाइक। अब आप डायरेक्ट ऐसे अगर कहोगे आई डिसलाइक टेलिंग मी व्हाट टू डू, किस चीज को आप डिसलाइक करते हो? आई डिसलाइक पीपल, मैं उन लोगों को डिसलाइक करती हूँ कि जो मुझे बताते हैं कि किस तरह से सोचना चाहिए। आई डिसलाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, व्हाट टू थिंक। तो यहाँ पे देखिए डिसलाइक हमारी वर्ब, पीपल ऑब्जेक्ट एंड टेलिंग gerund. You cannot say that I dislike people to tell me what to think. That would be incorrect. Next is I can't imagine him working in an office. I can't imagine is our verb, him is our object, and working is our gerund structure. I can't imagine him working in an office. I can't imagine him doing late nights. Next is nobody can stop him doing what he wants to. You can also write it as I can't imagine working in VRs. In VRs means late night. And you can also write imagine and then object and after that gerund structure. It's completely your choice. Next is nobody can stop him doing what he wants to. Stop के बाद में हम ing को यूज करते हैं और कई बार ये होता है कि स्टॉप के बाद में हम ऑब्जेक्ट भी यूज कर लेते हैं, फिर भी बाद में स्ट्रक्चर ing ही रहता है। जैसे आप चाहे, आपने बहुत बार क्लास में टीचर को ये कहते सुना होगा दैट स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप मेकिंग एनी नॉनसेंस। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप टॉकिंग ing, स्टॉप मेकिंग ing, और देखिए स्टॉप के बाद में हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसके बाद में भी हमें ing लगाना पड़ेगा। स्टॉप हिम doing what he wants to. You can't stop people doing what they want. कि आप लोगों को नहीं रोक सकते कि वो क्या करना चाहते हैं वो करने से। I can't imagine George riding a motorbike. Did she really say that? I don't remember her saying that. Remember के केस में भी ये हो सकता है। Sorry to keep you waiting. अभी हमने किया था keep practicing, keep going on, keep studying. तो इन सब में क्या था, keep के तुरंत बाद हम ing यानी gerund structure यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है और फिर से ing स्ट्रक्चर यानी कि keep या कुछ वर्ब्स ऐसे हैं इनके बाद में ऑब्जेक्ट आए ना आए, हमें ing स्ट्रक्चर डेफिनेटली वहां लगाना है अगर वर्ब आ रही है तो। सो keep you waiting, sorry to keep you waiting so long. अब देखिए स्टॉप जो है ये इनफॉर्मल हो जाता है, इसका जो फॉर्मल वर्जन है वो हो जाएगा हमारा प्रिवेंट। तो प्रिवेंट के बाद में भी हम ing को यूज करते हैं, ट्राई टू प्रिवेंट देम फाइंडिंग आउट। नेक्स्ट में आते हैं पर्पस। जैसे पर्पस के लिए हम फॉर को यूज करते हैं, तो फॉर के बाद में ing फॉर्म को हम यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए अ ट्रिमर इज अ मशीन फॉर कटिंग। तो आपने देखा यहाँ पे फॉर के बाद में ing को यूज किया गया है जब भी हमें किसी पर्पस को डिनोट करना हो। नेक्स्ट इज आई नीड समथिंग फॉर व्हाट, फॉर किलिंग फ्लाइज। नेक्स्ट इज हैव यू गॉट एनी स्टफ फॉर व्हाट, फॉर क्लीनिंग सिल्वर। नेक्स्ट इज आफ्टर ऑल prepositions. Make this your key rule that you have to apply a gerund structure after every preposition. First example is, are you interested in? In is our preposition and then we are using working for us. You cannot say that are you interested in to work for us. That would sound absurd, really absurd. Are you interested in working? Next is, I'm not good at learning. यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ
इनके साथ में जो प्रपोजिशन है ये फिक्स्ड है। आर यू इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन के साथ में, इंटरेस्टेड के साथ में इन प्रपोजिशन हमेशा ही रहती है। आर यू इंटरेस्टेड फॉर, इंटरेस्टेड टू, हम ये सब नहीं यूज करते। गुड एट समथिंग होता है, कोई सब्जेक्ट है, गुड एट दैट सब्जेक्ट होता है, ना कि गुड इनटू दैट सब्जेक्ट है, ये सब हम नहीं यूज करते। फेडअप के बाद में फिक्स्ड है कि प्रपोजिशन में विद ही हम यूज करेंगे। फेडअप विद स्टडीइंग, यानी कि मेरा मन भर गया है पढ़ने से। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ, हाँ इसके केस में हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, अगेन हैविंग आईएनजी। नेक्स्ट इज थैंक्स very much or thank you very much for inviting. Next is how about, about भी हमारी preposition है, so we are using meeting here. How about meeting for tomorrow, for lunch tomorrow. Next is why don't you go out instead of sitting in spite of feeling. तो सभी prepositions के बाद में हमने ing structure को ही यूज किया था यहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट है अप्रूव ऑफ, अप्रूव के बाद में ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशन है पहली बात, और इस वजह से क्योंकि ऑफ है प्रपोजिशन आ गया तो हमने इसके बाद में जो वर्ब यूज की है वो आईएनजी स्ट्रक्चर में यूज की है। वी हैव डिसाइडेड अगेंस्ट मूविंग टू लंदन, ना कि अगेंस्ट टू मूव टू लंदन। नेक्स्ट है आई वुड ड्रीम ऑफ asking them for money. I wouldn't dream of asking them for money. मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती सपने में भी। I wouldn't dream of doing this thing. Next is I don't feel like going out tonight. हम कई बार बोलते हैं ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, या फिर मेरा मन नहीं कर रहा और पढ़ने का। In that case you can say that I don't feel like studying anymore. Next है they insisted on, insist के साथ में on हमेशा रहती है, ये fixed preposition है। So they insisted on paying for the meal. Insist on यानी कि आप जोर दे रहे हो किसी बात पे। Next is are you looking forward to? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। लुक फॉरवर्ड के बाद में फिक्स्ड प्रपोजिशन जो है वो हमेशा टू ही रहेगी, और यहाँ पे जो टू है ये हमारी प्रपोजिशन है, इस वजह से इसके बाद में यहाँ पे गोइंग आ रहा है। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अवे, या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, कि मैं तुमसे मिलने का सोच रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग दैट एग्जाम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपीयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट। नेक्स्ट है हैज पॉल सक्सीडेड इन फाइंडिंग जॉब येट। सक्सीड इन समथिंग होता है, सक्सीड इन हमेशा इन रहता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज आई एम थिंकिंग ऑफ और थिंकिंग अबाउट, यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज प्रपोजिशंस। Thinking of buying a house or thinking about buying a house. We talked about going to South America, and last one is we should you should apologize for not telling the truth. Apologize for something and apologize to somebody. You must write these fixed prepositions. You apologize to a person, I'm writing it here, somebody, and you apologize for something. किसी चीज के केस में आप for यूज करोगे, किसी पर्सन के केस में आप to यूज करोगे। For example, you should apologize to him for not going there. Next है, अब यहाँ देखिए वही केस आ गया। अब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी आप लगा सकते हो, फिर भी आप प्रपोजिशन यूज कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, प्रपोजिशन के बाद में आईएनजी स्ट्रक्चर हमें रखना है। फॉर एग्जांपल ही एक्यूज्ड, एक्यूज मीन्स आरोप लगाना, ही एक्यूज्ड मी कि मुझ पे लगाया, ऑफ टेलिंग लाइज। जैसे ही यहाँ पे देखा हमने ऑफ प्रपोजिशन आ रहा है तो हमें तुरंत ये माइंड में आना चाहिए कि हमें जेरेंट स्ट्रक्चर को यूज करना है, टेलिंग लाइज। नेक्स्ट है we congratulated Lisa on winning the first prize. Extremely important verb and its preposition, fixed preposition I would say. Congratulate के बाद में हमेशा ही on preposition को यूज किया जाता है। अगर आप ये कहते हो that we congratulated Lisa for winning the first prize, तो for जो है वो incorrect हो जाता है, ये आप जरूर नोट डाउन करना। for नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा ही on होगा। we congratulate on something, on somebody's success, we compliment
कॉम्प्लीमेंट के केस में भी ये रहता है, वी कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन देयर अटायर, देयर ड्रेस, देयर वे ऑफ टॉकिंग, एनीथिंग. नेक्स्ट इज what prevented you from coming to see us. Again, prevented you and from my preposition thi, so ing structure. The rain didn't stop us from enjoying our holiday. Suspected, nobody suspected the general of being a spy. And last one is I thanked everyone for helping me. Thank के केस में आप हमेशा for यूज करोगे, लेकिन congratulate के केस में on को यूज करना है. Don't get confused between both of these verbs. Next is afraid. Again, afraid of gerund, afraid of doing something, so afraid of crashing, afraid of walking, ये हो जाएगा. नेक्स्ट है देखिए, I hate the idea of getting old, ना कि I hate the idea to get old. The thought of failing never entered his head, ना कि the thought to fail, ये नहीं होगा कि उसके दिमाग में कभी भी फेल हो जाने का आइडिया आया ही नहीं. नेक्स्ट है आई एम tired of listening to this, I am tired of doing something, ना कि I am tired to listen, वो गलत हो जाएगा. Last one is she is very good at solving problems. हम पहले कर चुके हैं good at doing something, good at some kind of subject. Next is instead of, तो फिर से ing आ जाएगा. और next है finished by working, about moving, again instead of going, ना कि instead of to go, वो incorrect हो जाएगा. You can also say before I went out, ये आप यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे before के बाद में I आ रहा है, subject आ रहा है, after के बाद में you, कोई subject आ रहा है, लेकिन तुरंत अगर इनके बाद में आप verb लगाओगे तो वहां पे ing structure ही यूज करोगे. अब देखिए, always check the oil before starting the car, ना कि before start या before to start the car. नेक्स्ट है by plus ing. by के बाद में हमेशा ing स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं if you want to denote some kind of action. So you can improve your English by reading more. She made herself ill by not eating properly. प्रॉपरली उसने खाना नहीं खाया, इस वजह से उसने खुद को ही बीमार कर लिया. नेक्स्ट इज मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय पीपल ड्राइविंग टू फास्ट, ना कि बाय पीपल टू ड्राइव टू फास्ट, वो इनकरेक्ट हो जाएगा. The burglars got into the house by breaking a window and climbing in. by के बाद में हमेशा ing को यूज किया जाएगा. Coming to next one, without. without के बाद में भी हमेशा ing फॉर्म यूज होगी. We ran 10 kilometers without stopping, बिना रुके. It was a stupid thing to say. I said it without thinking. बिना सोचे मैंने ऐसे बोल दिया. I said it without thinking. She needs to work without people disturbing her. इस केस में हो सकता है without के बाद में आपको डायरेक्ट without के तुरंत बाद आपको gerund structure मिल जाए, means at adjacent position. और ये भी पॉसिबल है कि विदाउट के बाद में कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्ट मिले, तब भी आपको हमेशा ing फॉर्म तो यूज करनी ही है. जैसे यहाँ देखिए, विदाउट पीपल डिस्टर्बिंग, विदाउट पीपल डिस्टर्बिंग हर, और विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड. और ये जो बीइंग डिस्टर्ब्ड है, मैं आपको बता दूं, ये पैसिव वर्जन है gerund का. विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, तो देखिए बीइंग यानी बी, डिस्टर्ब्ड यानी कि V3. नेक्स्ट है I have enough problems of my own without having to worry about yours. और लास्ट वन है you can't make an omelette without breaking. तो without के बाद में कोई भी verb आएगी, हमेशा ing में उस एक्शन को डिनोट किया जाएगा. नेक्स्ट इज I can't help doing, means I can't help ing structure, ये होगा. और I can't help, ये हम कहाँ यूज करते हैं कि मैं हेल्प नहीं कर पाई, मैं सहायता नहीं कर पाई, ये मीनिंग नहीं होता इसका मीनिंग हो जाता है आई कांट स्टॉप माई सेल्फ डूइंग इट, मीन्स मैं खुद को नहीं रोक पाई वो काम करने से, ये मीनिंग होता है आई कांट हेल्प का. आई कांट हेल्प डूइंग समथिंग यानी आई कांट स्टॉप माई सेल्फ डूइंग इट. जैसे कि आई डोंट लाइक हिम बट ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. आई कांट हेल्प फीलिंग सॉरी फॉर हिम, यानी कि मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा, मैं खुद को नहीं रोक पाई. आई कांट
help feeling. She tried to be serious but she couldn't help laughing. यानी कि उसने ट्राई किया सीरियस होने का लेकिन वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाई. She couldn't help laughing means she couldn't stop herself from laughing. Next is I'm sorry, I'm so nervous, I can't help it. कि I'm sorry, मैं अभी नर्वस हूँ और मैं रोक भी नहीं सकती खुद को नर्वस होने से. I can't help it. ये आप हर उस सिचुएशन में यूज कर सकते हो. I can't help it. इसे जहां पे भी आपको लगता है कि जो सिचुएशन है आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और आप कुछ नहीं वहां कर पा रहे हो, इन दैट केस यू कैन यूज दिस फ्रेज. नेक्स्ट में आते हैं देयर इज नो पॉइंट इन. उसके बाद में हम आईएनजी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे. इट इज नो यूज, फिर से आईएनजी एंड इट इज नो गुड. आईएनजी यानी कि इसमें कोई भलाई नहीं है. इट इज नो गुड, इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं होगा ये काम करने से. देयर इज नो पॉइंट इन, अगेन वही चीज है. तो इन सब के बाद में, इन तीनों ही फ्रेजेस के बाद में आईएनजी स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ कार इफ यू नेवर यूज इट. देयर वाज नो पॉइंट, इसको हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं. देयर इज और देयर वाज. इट इज, इट वाज. इट इज नो गुड, इट वाज नो गुड. नेक्स्ट है देयर वाज नो पॉइंट इन वेटिंग एनी लॉन्गर. देखिए अब इन वेटिंग. नेक्स्ट है जैसे इट इज नो यूज वरिंग. वरी में आईएनजी हमने यूज किया है. इट्स नो गुड ट्राइंग टू परसुएड मी. परसुएड मीन्स मनाना. परसुएड का मीनिंग होता है राजी करना किसी को. नेक्स्ट है वी से नो पॉइंट इन बट द पॉइंट ऑफ. देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ कार, या फिर आप ये भी बोल सकते हो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ कार. दोनों का खैर मीनिंग सेम होता है. No point in doing something or the point, what is the point of doing that thing. Next है it is worth doing something. worth के बाद में हमेशा ही ing स्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा. हमेशा. worth यानी कि किसी चीज के लायक होना. it is worth doing something. it is not worth यानी किसी चीज के लायक ना होना. अब देखिए it is a nice town, इट इज वर्थ स्पेंडिंग अ फ्यू डेज देयर. कि यहाँ पे अगर हम कुछ दिन बिताते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही होगा. इट इज वर्थ स्पेंडिंग आईएनजी. नेक्स्ट इज आवर फ्लाइट वाज वेरी अर्ली दिस मॉर्निंग इन द मॉर्निंग सो इट वाजंट वर्थ गोइंग टू बेड. तो बेड में जाने का यानी कि दोबारा से सो जाने का कोई फायदा नहीं था. नेक्स्ट है यू कैन ऑल्सो से दैट something is worth doing, या फिर मूवी के केस में है worth seeing, worth watching. किसी ऑडियो बुक के बारे में है worth listening to. ये सारे हम यूज कर सकते हैं. it is a great movie, it is worth seeing मीन्स देख के हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, अच्छा ही लगा. thieves broke into the house, broke into मीन्स जब कोई घर में घुस जाता है बिना परमिशन के कुछ तोड़ फोड़ करके, तो broke into वहां पे हम यूज करते हैं. the house but didn't take anything. There was nothing worth stealing. कुछ ऐसा था ही नहीं चुराने लायक. worth stealing. Next है it is an interesting idea. idea अच्छा है. it is worth thinking about. सोचने लायक है. worth thinking about. Next है have trouble doing something, have difficulty doing something or have a problem doing something. यहाँ पे मैं चाहती हूँ आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इन्हें अच्छे से याद कर लो ताकि कभी भी हम इन स्ट्रक्चर्स को यूज कर पाए. देखिए आई हैड नो ट्रबल फाइंडिंग अ प्लेस टू स्टे. हैड मीन्स पास्ट की बात हो रही है कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है घर ढूंढने में. आई हैड नो ट्रबल फाइंडिंग अ प्लेस. आप ये नहीं कहोगे आई हैड नो ट्रबल टू फाइंड अ प्लेस. नेक्स्ट है डिड यू हैव अ प्रॉब्लम गेटिंग अ वीजा. डिड अगेन पास्ट की बात है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई थी वीजा लेने में. सो डिड यू हैव अ प्रॉब्लम गेटिंग अ वीजा. नेक्स्ट है पीपल समटाइम्स हैव डिफिकल्टी रीडिंग माई राइटिंग. कि लोगों को कई बार ये डिफिकल्टी होती है मेरी राइटिंग पढ़ने में. डिफिकल्टी इन आप ये भी यूज कर सकते थे. हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग माई राइटिंग. और देखिए कोई ऐसी राइटिंग है जिसको आप पढ़ नहीं पाते हो तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं illegible. illegible. और अगर कोई बहुत ही अच्छी राइटिंग है जिसको आप इजीली पढ़ पाते हो तो वहां पे हम ill इसको रिमूव कर देंगे, वो हो जाएगा legible means which can be read. which can be read.
ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वी से स्पेंड टाइम डूइंग समथिंग। स्पेंड या वेस्ट दोनों के बाद में अगर हम कहीं ना कहीं टाइम को यूज करें, टाइम कैसा भी हो सकता है, घंटे, मिनट और मंथ्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे यहाँ पे आवर्स भी हम यूज कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम मेंशन ही नहीं करना चाह रहे कि कितना टाइम है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, फ्यू मोमेंट्स, अ लॉट ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, इनफ ऑफ आवर्स, ये सारे। तो स्पेंड उसके बाद में टाइम हो तो उसके बाद में आईएनजी स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पेंट आवर्स ट्राइंग टू रिपेयर द क्लॉक। उसने घंटों बिता दिए उसको क्लॉक को रिपेयर करने में। नेक्स्ट है आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग नथिंग। मैं खाली बैठे रहने में, डूइंग नथिंग मीन्स खाली बैठे रहना, सिटिंग आइडल, सिटिंग आइडल, IDLE. This is the correct spelling. So I waste a lot of time sitting idle. I waste a lot of time doing nothing at all. I waste a lot of time watching television. Next है we use go plus ing structure for sports and other activities. Adventure sports जो होते हैं उनके केस में कुछ activities होती है, वहां पे हमेशा ही go और ing, go के बाद में जो हम next verb लगाते हैं वो ing में यूज करते हैं। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए जैसे सबसे पहले शॉपिंग वाला केस लेते हैं। आई गेस यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप जरूर नोट डाउन करना, गो शॉपिंग। आपने बहुत बार सुना होगा गो फॉर शॉपिंग, गो टू शॉपिंग। एक्चुअल में होता है, अगर आप करेक्ट यूज करना चाह रहे हो तो गो शॉपिंग, इसके डायरेक्ट बाद में आईएनजी को यूज किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारी आदत ये हो चुकी होती है गो फॉर शॉपिंग बोलने की, तो हम उसी को मान लेते हैं कि वो करेक्ट है, गो शॉपिंग होता है, ना कि फॉर टू, ये सब नहीं यूज करते। जैसे कि यहाँ पे देखिए टॉम इजंट हियर, ही हैज गॉन शॉपिंग, ना कि ही हैज गॉन टू शॉपिंग, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सेलिंग हो गया, गो सर्फिंग, गो स्विमिंग, गो फिशिंग, ये भी बहुत बार यूज करते हैं हम। गो फॉर फिशिंग, गो फॉर फिशिंग नहीं होता, गो फिशिंग। गो राइडिंग, गो हाइकिंग, गो कैंपिंग। गो फॉर जॉगिंग नहीं होता, गो जॉगिंग डायरेक्ट यूज किया जाता है। गो स्कीइंग, गो स्क्यूबा डाइविंग, गो सर्फिंग, ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग, ना कि डू यू गो फॉर स्विमिंग। We went skiing, ना कि we went for skiing last year. And last one is I have never been sailing, ना कि I have never been for sailing. अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, यानी कि हमारे vocabulary portion पे। And in today's vocabulary session we can talk about success and failure. The very first word is resounding. और resounding का मीनिंग होता है बहुत ही बड़ा कुछ होना, very great। और यहाँ पे आप ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, enormous, enormous, huge, huge। इसके अलावा massive, 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 और tremendous, I'm writing it here, tremendous, on a very large scale। तो ये सारे आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हो resounding के। और ये बहुत बड़ा, ये सक्सेस के केस में हो सकता है, डिफीट के केस में भी हो सकता है, मीन्स बहुत बड़ी हार, रिसाउंडिंग डिफीट, बहुत बड़ी जीत, रिसाउंडिंग विक्ट्री, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टर्न आउट, टर्न आउट वेल, कोई चीज जो है वो बहुत अच्छे से हुई है, जिसका हमें जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मीन्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी हो गई वो। और टर्न आउट बैडली, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत बुरी हो गई वो चीज। नेक्स्ट है the secret of your success, secret of somebody's success means किस तरह से उसने कुछ जो एक्शंस हैं वो किए कि वो सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट है a stroke of something, a stroke of something अगेन अनएक्सपेक्टेड कोई चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a stroke of luck अगर मैं बोलती हूँ तो यानी कि अनएक्सपेक्टेड था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा होगा, लेकिन a stroke of luck कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई वो। नेक्स्ट है पोटेंशियल, अब पोटेंशियल क्वालिटीज या एबिलिटीज के लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड कि जिनको हम फ्यूचर में डेवलप कर सकते हैं, जो आसानी से डेवलप की जा सकती हैं और जो हमें सक्सेस तक ले जा सकती हैं, उसके लिए हम बोलते हैं पोटेंशियल। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा
कि मुझे इस कैंडिडेट में काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है, यानी कि इसमें काफ़ी एबिलिटीज़, काफ़ी क्वालिटीज़ मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जो फ्यूचर में जाके सक्सेस को डेवलप कर सकती हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये भी हम यूज़ करते हैं, रियलाइज योर पोटेंशियल, कि आप में जो एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको रियलाइज करो ताकि आप आगे बढ़ सको। नेक्स्ट है, नॉट पुट अ फुट रॉन्ग, कोई भी एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं करना। देखिए, टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी कि जो स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छे से करना, बेस्ट लेवल से आप स्टार्टिंग करना। उसके लिए हम यूजुअली इस फ्रेज को, इस इडियम को यूज करते हैं। ये किसी को विश करने, किसी को लक विश करने के लिए भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड लक, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड लक यू कैन ऑल्सो से दैट आई विश दैट यू पुट योर बेस्ट लेग फॉरवर्ड, योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नॉट टू पुट अ फुट रॉन्ग, यानी कि जो हमारा फुट है उसको गलत डायरेक्शन में नहीं रखना, यानी कि मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट पे आते हैं, ओवरकम समथिंग, ये हम कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, यानी किसी जो प्रॉब्लम है उसको, उससे डील कर लेना अच्छे से, उसको ओवरकम कर जाना, उससे पार पा जाना। नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट, हिंड्रेंस ये आप यूज कर सकते हो एज अ सिनोनिम। A situation or event that makes it hard for you to achieve something, or that make it hard for you to keep going. Next है in somebody's way या फिर in the way. Usually हम यही यूज करते हैं in the way. और somebody for example in my way, don't come in my way, यानी कि मेरे रास्ते में मत आओ, यानी कि मैं जो काम कर रही हूँ उस काम को करने से मुझे रोको मत, in somebody's way और in the way. Next is come unstuck, पूरी तरह से फेल हो जाना, फेल कंप्लीटली, कम अनस्ट्रक। और इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फियास्को। फियास्को, आई गेस मैं आपको ये वर्ड पहले करवा चुकी हूँ। टू एंड समथिंग इन फियास्को मीन्स टू एंड समथिंग इन अ कंप्लीट फेलियर। नेक्स्ट है मेक इट, मेक इट यानी कि कोई काम करने में सक्सेसफुल हो जाना। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट येस्टरडे, कि आई एम सॉरी मैं कल वो काम नहीं कर पाई। सो मेक इट यानी कि कर लेना, किसी भी काम को सक्सेसफुल हो जाना, किसी काम को करने में। नेक्स्ट इज ब्रेक थ्रू, एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट में लीड टू एन अचीवमेंट, यानी कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आगे चल के सक्सेसफुल हो जाए, जो आगे चल के बहुत बड़ी अचीवमेंट बन जाए, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं ब्रेक थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्टर है, उसे स्टार्टिंग में ही किसी बड़े बैनर की अगर मूवी मिल गई तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू का काम करेगी। नेक्स्ट है गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यानी कि आप पहले से सक्सेसफुल हो, उससे और ज्यादा आप सक्सेसफुल बन रहे हो, बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल। तो वहां पे हम इस फ्रेज को यूज करते हैं दैट यू आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। अब आते हैं इसके पैसेज पे। दो लोग हैं यहाँ पे, जेन एंड मैक्सिमो। जेन बोलता है मैक्सिमो, योर पिज्जा चेन हैज बीन, ये हैज है। So Maximo, your pizza chain has been a resounding success, means has been an enormous, a huge success. How did things turn out? कि इस तरह से चीजें turned out so well, इतनी अच्छी कैसे हुई चीजें तुम्हारे लिए? What is the secret of your success? कि क्या क्या steps तुमने लिए, कौन कौन से obstacles को तुमने क्रॉस किया। नेक्स्ट है, इसमें मैक्सिमो का रिप्लाई होता है वेल आई हैड अ स्ट्रोक ऑफ लक अर्ली ऑन, कि स्टार्टिंग में तो मैं लकी था, थोड़ा सा बस लक ने काम किया मेरा। आई हायर्ड अ टैलेंटेड यंग शेफ हु वाज रियली कीन टू फुलफिल हिज पोटेंशियल, यानी कि मैंने एक काफी टैलेंटेड यंग शेफ को हायर कर लिया, ये सबसे बड़ा लक था मेरे लिए। हु वाज रियली कीन टू फुलफिल हिज पोटेंशियल, जो कीन मीन्स टू बी ईगर टू डू समथिंग, उत्सुक होना बहुत किसी काम को करने में। फुलफिल हिज पोटेंशियल, और नेक्स्ट है एंड बेसिकली ही नेवर पुट अ फुट रॉन्ग, और उसने कभी कोई गलती भी नहीं की। We had to work together to overcome all the obstacles in our way. We had to, हमें काम करना पड़ा साथ में, to overcome, ताकि हम क्रॉस कर सकें सारी हर्डल्स को, सारी ऑब्स्टिकल्स को। हर्डल भी हम यूज कर सकते हैं, हर्डल और हिंड्रेंस।
इन आर वे, हमारे रास्ते में जो भी मुश्किलें थी कि हम सबको क्रॉस कर सकें. वी नियरली केम अनस्टक, यानी कि वी नियरली केम अनस्टक, हम लगभग अनसक्सेसफुल हो गए थे. हमारा लगभग एक फेलियर वाला पॉइंट आ ही गया था. व्हेन द फर्स्ट रेस्टोरेंट वाज फ्लडेड, जब फर्स्ट रेस्टोरेंट जो है वो उसमें बाढ़ आई थी. बट इवेंचुअली वी मेड इट, लेकिन फिर भी हम चलते गए और हमने अपना जो अचीव करना था, जो गोल था हमारा, वो अचीव कर लिया. उसके बाद में जेन बोलता है यू मेड अ बिग ब्रेक थ्रू आफ्टर यू वेंट ऑन दैट टीवी शो डिडंट यू, कि जब से तुम उस टीवी शो पे गए हो उसके बाद में वो जो टीवी शो था वो तुम्हारा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ, यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट तुम्हारी साबित हुई है वो. मैक्सिमम इस पे बोलता है यस वी वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आफ्टर दैट, और उसके बाद में बस हम सक्सेसफुल ही होते गए हैं लगातार. स्टिल यू कैन नेवर रिलैक्स, और फिर भी अभी भी आप रिलैक्स नहीं कर सकते, मीन्स हमें बस करते ही जाना है काम को. तो ये होगा आपका टास्क. आपको अगर कोई जो लाइन है वो आपको पॉजिटिव लगे, आपको गुड वहां पे लिखना है जी, अदरवाइज बैड बी. नेक्स्ट आपका टास्क ये है, यहाँ पे वो कैप्स को आपको फिल करना है, और इसके अलावा ये ट्राई आउट करना, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ कैन अ gerund कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स पैसिव वॉइस. ये आपका टास्क रहेगा. सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग.